बहुत मेहनत की है और मैंने क्या मेरी सारी टीम ने, प्रेम चोपड़ा जी बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म की स्क्रिप्ट को सुनने के बाद। So everybody is trying to give his or her best in this movie. Gautam is a very talented person and rising star, and he happily joined us after listening to the script. Same Bruna, same Saisa. Everybody is so enthusiastic for this movie, and I want you people to give wishes to us to make this venture a successful venture. Thank you. About the director, Vipin Parashar, really a very talented director. I saw his movie No Exit. After watching his movie, my mind was completely, changed, because the work he has done, it was awesome, and because of this movie we are together now today. Thank you. Thank you, sir. I'm glad you brought up Mr. Parashar, because I was going to get to him next. A little bit about Mr. Vipin Parashar before I call. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you Premji, Bruna, Gautam, Saisha. Thank you everyone. फिल्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आई थिंक हम सभी में एक कॉन मैन छुपा है जो हमारे अंदर है। छोटे छोटे कॉन्स हम लोग करते रहते हैं अपने जीवन में भी, अपनी रियल लाइफ में। तो सभी आर्टिस्ट, जितने भी कलाकार हैं, सब लोग कौन कर रहे हैं, कौन किसको कौन कर रहा है, ये फिल्म में आई थिंक दैट इज द बेसिक ब्रीफ
of the film, and I hope that we achieve what we want. So I think that's it. How did the journey start for you? I think I need Sir to come because we started together. So if he can come. I think we met almost 7-8 months back, almost 9 months. And in 9 months, this baby is going to start. So we started looking at scripts, looking at thoughts. बहुत scripts सुनी, बहुत फिर सर कहीं सर को मजा नहीं आ रहा था, कहीं मुझे मजा नहीं आ रहा था. We were not able to come on the right track, and I think एक right track हमें मिला. सर बताएंगे. When I met Vipin first time, because I believe in fresh contents, because fresh people will show their talent, and I was also since after meeting Vipin Parashar and after watching his movie No Exit, I realized he is the right person who will do justice with our movie, because the script which I had already in my mind, but we did a lot of changes after listening to the script, and Vipin Parashar has played a very important role in making this script so interesting. So because of this script we are together here, and he is very passionate and very serious about this movie, and we all want to do something great work. Yeah. And I think Vishal is there who wrote the film. He's got the credit to write, and there is a Vaibhav Bajpai who gave the words to the film. I think they're going to perform now, April onwards. So butterflies are there. So let's see where we'll achieve. So I think that's it. Thank you, and we hope this film takes flight and it does beautifully. And I'm sure. How has it been for you? Congratulations, first of all. and to start with, there's some little birdie told me that there were almost 100 films that were offered to you, but you kind of zeroed down on this one. So I'm very intrigued to know, and I'm sure everybody is, what made you sort of stick with this one in comparison to the others? See, I got to meet so many people. At the same time, I'm still meeting people. अभी भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, और आगे भी कुछ projects हैं जो मैं अभी lined up हैं, जिसके लिए मैं me and my team are working on it. So, but ये जो project मेरे सामने आया तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि script अच्छी थी पहले तो, and लोग अच्छे थे. The way they came up to me and wanted me badly for the film. So जब मैंने पढ़ना start किया तो मुझे अच्छा लगा कि the people are really good, and why not to shake hands with them, so then I made my mind to work with them, and now today we all are here to announce. Well, I wish you all the best, and I want to ask Saisha the same question. Tell me, is this a dream come true for you? I know it's a wonderful script from what we gather, but tell us more. Hi, good evening everyone. So finally the day has arrived for me. I'm very excited. Before I say anything, I would like to take this opportunity to thank everyone in my team. First and foremost, Mr. Ravindra sir, who is producer and creative director of my film. So without your support, this wouldn't have been possible. Thank you. Then of course my director, who's been very supportive, very kind and motivated. Thank you, Vipin sir. And all my co-actors. You are not just the co-actors, you all are an inspiration for me. Legend of Indian cinema, Prem Chopra ji. Then my co-star, obviously. It's a pleasure to work with him. Beautiful Bruna. So yeah, I'm very excited. And coming down to my experience till now, I've already worked with Vipin sir in his previous film. So I've worked with in his album. So I knew them from before. And they were very sure that I can pull the character and I deserve to be where they have placed me. So that's how it started 4-5 months back. They auditioned me, they liked me, and they got me. And it's a wonderful platform. Thank you, everyone. Thank you, Saisha. Thank you. All the best. And a couple of words from you about how it is to be associated with the team of people here. And so as you all know, this is my first, but still I'm really excited. I love what I do, and
I couldn't be more honored to be here with you guys today. I know it's going to be awesome. I want to make this fun, so I'm really excited. I'm really excited to work with such senior actors, and the director himself, Vipin, that put his trust on me for this character, and I am going to give my 100%. I'm really excited. It's just the beginning, so there's really nothing much we can talk about now, but let the journey begin. Awesome. All the best. All the best. I'm now going to request Mr. Vipin and Mr. Singh to come on stage with Mr. Prem Chopra and tell us a bit about Sir being part of the project, and then we'll go on to unveiling the logo of the film. I'd actually like to ask you what I asked them, and a question for the cast of the film in general is, how is it to be associated with this group of people? Wonderful, wonderful, wonderful. I'm very glad to be here. Why? Because the whole team is so much involved, and that is very important when you make a film. Everybody is very passionate and obsessed with the making of this film. And I'm definitely sure, because of the script that I have gone through or even narrated, this is very, very interesting, very good. वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ आदमी रहा हूँ, लेकिन इस फिल्म में मैं ज़रा अलग किस्म का रोल कर रहा हूँ, जो कि मुझे बड़ा एक्साइट किया जिन्होंने, और आप देखिएगा कि ये चेंजेस आएंगी इस फिल्म में, जिससे बहुत लोगों की कैरियर जो है वो अलग अलग किस्म की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जैसे इन्होंने कहा कि वो जाए शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, अरे मायूस ना होना, इरादे ना बदलना, तकदीर किसी वक्त पे बदल सकती है। तो ये देखिए, ये जो है ये मेहनत का नतीजा होता है। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं कि लेकिन उनको सही ब्रेक जब मिलता है तो उनका भी आगाज शुरू हो जाता है। I wish all the best to everyone and thank you, all of you, very supporting, and thank you so much for it. Thank you so much, sir. We would now like to go on to unveiling of the film's logo. I'd like to call Mr. Vijayendra Kala on stage, please, as well. Okay, he's not here with us at the moment. इसका लेंगे उसका लेंगे बैठो
यार अभी मैंने साइन नहीं की यार। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैंने साइन की नहीं है। I'll tell you, थोड़ा पेशेंस से। नहीं, अभी साइन नहीं किया मैंने, बट मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। मैं जब भी साइन कर लूंगा तो देन आई लेट यू। फोन तो नहीं कर रहे होंगे? नहीं, अभी साइन की नहीं है, बट आई डेफिनेटली लेट यू नो अगर कुछ भी ऐसा रहेगा इन फ्यूचर, फॉर श्योर। मैं पहले बताऊंगा, सबसे पहले आई कॉल यू फॉर श्योर। थोड़ी सी बोल्ड साइड देखी थी हमने बिग बॉस में आपकी, तो मतलब आजकल के फिल्म्स भी काफी बोल्ड है, तो पर्दे पर कितना बोल्ड दिखाई देंगे आप? लव मेकिंग सीन्स, किसिंग सीन्स? हाँ, वो सब पता नहीं यार, वो सब तो पता नहीं। अगर वैसे तो फैमिली फिल्म है और वो सब तो नहीं होगा, बट ये कि मज़ा बड़ा आएगा देखने में। कॉमेडी होगी, मस्ती होगी, मजाक होगा और फन होगा, टशन होगा। सो एवरीथिंग विल बी देयर वेयर सबकी फैमिलीज आराम से जा सकेंगे फिल्म देखने, और आई एम श्योर डेफिनेटली दे आर एंजॉय। मूवीज करना पसंद करेंगे या फिर ए रेटेड मूवीज भी करने में मतलब आप नहीं, कुछ अलग करेंगे साथ साथ अपना, देखते हैं कि कुछ अलग सामने आता है। सो एक आध प्रोजेक्ट है जो कुछ अलग भी है, बिल्कुल हटके है थोड़ा, वो भी मैं कर रहा हूँ। उसके बारे में तो अभी बिल्कुल बात नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आपको शायद जब whenever those people will tell me about it कि when I can disclose it, then I will definitely let you know। तो वो थोड़ा अलग है और वो तो आई थिंक पूरा देश जाएगा देखने, वो फिल्म ऐसी होगी। Saisha, you are related to Dilip Saab, right? So have you had a conversation with Dilip Saab or Sarah Manu and how was it like? What made you say that? You are not? No? So there were reports that you are related to him. No, I'm not. So Yeah. Hi, Bruna, over here. somebody else. Since you are a foreigner and I think you are going to be the grand person for this project, for this movie. So will you just speak up something about your role in the movie and your experience with the Prem Chopra Saab, how you like to just work? How? किसको पूछा रहे, वही नहीं समझ में आया। Gautam, I would want to know from you कि अगर टेलीविजन से वापस कोई बड़ा ऑफर आता है, so would you want to go back to television? ऑफर आए हैं अभी मुझे टेलीविजन से, और अभी झलक का भी मुझे ऑफर आया था, और एक जी का होस्टिंग करने के लिए भी आया था। बट अभी क्या है, अभी एक लंबा शो करके आया हूँ, तो बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए। एंड ऑफ द डे ज़्यादा ऑफर इतने भी टीवी से नहीं आ रहे, बिकॉज दोज पीपल ऑल्सो वांट मी टू गेट इनटू फिल्म्स ओनली, सो व्हाई नॉट, यू नो। सो आई एम गेटिंग film offers only, so I'm just concentrating towards that only। अभी तो फिलहाल टीवी का खुद वो लोग भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं यार थोड़ा तू फिल्मी है, तू फिल्म कर, और हम तेरे को ऐसे हीरो देखना चाहते हैं। तो ये उनका बड़प्पन है कि वो मेरे को ऐसे हीरो देखना चाहते हैं, और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि सबका सपोर्ट है। वेरी हैप्पी। Sorry to have interrupted you. We have with us Yogesh Lakhani ji here. I would like him to come on the stage. Give him a big applause. प्रेम जी, आपसे एक सवाल है मेरा यहाँ पे। आपने अभी कहा कि आपका बहुत अच्छा किरदार है फिल्म के अंदर, और हाल ही में शशि कपूर साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। आपने भी बहुत सी फिल्में की हैं उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, लेकिन अब फिर बताना चाहता हूँ कि शशि कपूर साहब के साथ मेरी फिल्मी कैरियर ऑलमोस्ट शुरू हुआ था आमने सामने फिल्म में। तो he was a very cooperative actor and he was totally a team player। तो जब हम लोग तो खैर बिल्कुल नए थे, he was a superstar at that time, लेकिन हम इतने करीब आ गए थे, मजाक चलता था हमारा बहुत, लेकिन वो बड़े सीरियस हो जाते थे, मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता था उनसे। तो साहब मैं किस्सा बताता हूँ आपको कि मेरी फर्स्ट पिक्चर जो थी, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स ऑफ माय करियर वाज आमने सामने। तो उसकी शूटिंग के सिलसिले में हम गए वैसे कश्मीर, श्रीनगर में। तो शमीला टैगोर जी और शशि और मैं
3 आर्टिस्ट थे, मैं उसमें आई वाज प्लेइंग द बैड गाय। तो लोग आते थे, वो ऑटोग्राफ लेते थे शशि कपूर से, शर्मिला टैगोर से, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती थी, तो ख्याल करते थे, उनको याद नहीं रहता था ये कौन आदमी। तो वो मेरे पास आके ऑटोग्राफ आप भी दे दीजिए, तो मैं बहुत खुश होता था। ऑटोग्राफ देने लगता था, सडनली एक हाथ आता था, ऐसे खींच लेता, नाम बताओ पहले इनका। कहते जी ये मेरे ख्याल में सुनील दत्त, नहीं सुनील दत्त नहीं, जाओ। तो वो इस तरीके से वो काफी लोगों को गोरा कर देते थे। अब एक दफा वो शॉट में फंसे हुए थे और मेरे पास एक आदमी खामोशी से आया, जी आप ऑटोग्राफ देंगे? मैंने कहा देते हूँ। तो मैं देने लगा, शॉट छोड़ के मेरे पीछे भागा, मैं आगे जाके अपना नाम पूरे कैपिटल वर्ड्स में लिख दिया। मेरा मतलब कहने का यह था कि he was such a lively man and such an entertaining person on the set. He would keep a very, very happy atmosphere. It saddens me to see such great people are physically unable to do great work which they would have done now, with all their experience, with all everything. But I wish him a long life, and my congratulations to him. It is a very deserving award, which he should have got it a little earlier. But anyway, he got it. That's the greatest thing. Thank you. लखानी साहब, आपके लिए एक सवाल था। अरे क्या बात है, क्या बात है। लखानी साहब जवाब देना। यहाँ पर, यहाँ सर, रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े स्टूडियोज के साथ, करण जौहर, फॉक्स, इरोस, सबकी मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया था कि आउटडोर होर्डिंग्स पे पैसा स्पेंड नहीं करेंगे। तो इस पे आपका क्या राय है? इस पे आपके बिजनेस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि यू आर नोन टू हैव गुड मैक्सिमम होर्डिंग्स। आपका क्या राय है सर इस पे? अभी तो कल 1 अप्रैल है और अप्रैल फुल बनाएंगे या सच्चे में अमल होगा? नहीं सर, ये अप्रैल फुल जोक नहीं सर, ये बहुत पहले आई थी ये खबर है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। अभी मैंने एक यूनिवर्सल का इंग्लिश पिक्चर का काम किया है, वायाकॉम मेरे से कोटेशन मंगा रहा है, टी सीरीज मंगा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं किया है। तो अभी 1-8 महीना ये लोग का यूनिटी चलेगा, शायद में भी थोड़ा टका बिजनेस। बट ये सही है गलत है आपके हिसाब से? लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्शन को, स्टार का खर्चे और बाकी सब खर्चे कम करने चाहिए। पब्लिसिटी और ये तो उनके जबरदस्ती का तो है नहीं खर्चा, ये तो खुशी की बात है कि उनकी मर्जी से वो लोग बजट देते हैं, और पिक्चर चली नहीं चली। बट आप मानते हैं कि स्टार्स के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो कम होना चाहिए? 100% प्रोडक्शन मतलब आउटडोर होर्डिंग्स में नहीं होना चाहिए? वो तो नॉमिनल बजट रहता है, 25-50 लाख में 1 करोड़ की पब्लिसिटी मिलती है। थैंक यू। इससे भी अच्छा बोलना, पता नहीं अप्रैल भूलेगी। Thank you very much, everybody. Actually, before the cast, what I would, this is the opportunity for a Janta. This is an opportunity for a Janta Bite. मूवी बोल रहा, पता नहीं अप्रैल फुल बना रहे क्या बना रहे। दूसरे का सामान भी देखना है। ठीक है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की पीछे खास मकसद क्या है? इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमने स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। इसकी जो फिल्म की यूएसपी है, इसकी स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट जैसा आजकल फिल्में चल रही हैं कि कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, स्टार कास्ट कोई मायने नहीं रखती है, तो मैंने कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया। पर फॉर्चुनेटली, लकीली हमको अच्छे लोग मिल गए, लाइक गौतम गुलाटी मिल गए, प्रेम चोपड़ा जी मिल गए, आशुतोष राणा जी भी इस फिल्म में आज आए नहीं है। तो ओवरऑल जो फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म के स्टार कास्ट, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं इस फिल्म में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, ये फिल्म कुछ अच्छा ही करेगी। आपको सर मालूम है कि जो क्रिएटिव बिजनेस होता है, जो फिल्म बिजनेस होता है, वो सबसे रिस्की होता है। तो आर्ट विजन का जो फिलॉसफी है कि नए कलाकार को मौका देते हैं, तो उसमें कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है? अभी गौतम गुलाटी को आप मौका दे रहे हैं बड़े पर्दे पे, तो कितना आप ये समझते कि रिस्क फैक्टर है ये? अब टाइम चेंज हो गया है। पहले एक टाइम था जो जब बड़े बड़े स्टार कास्ट होती थी, फिल्में नाम से चल जाती थी। आजकल वैसा टाइम नहीं है, टाइम चेंज हो गया है। आजकल बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में भी फ्लॉप होती हैं
और जो आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्म होती हैं, जो रियलिटी पर बेस्ड होती हैं फिल्म, वही फिल्म चलती हैं। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, और हम लोगों की कोई बहुत, इट्स नॉट ए वेरी बिग बजट फिल्म, वी हैव वर्कड इन ए वेरी लिमिटेड बजट। और हर एक इस फिल्म में एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ कि, और एवरीबडी वांट्स टू गिव हिज बेस्ट इन दिस मूवी। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच किया गया। गौतम गुलाटी हमारे डायरेक्टर से एक बार उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसने कहा पहले आप मुझे स्क्रिप्ट सुनाओ। उसने कहा ठीक है। जब स्क्रिप्ट का नरेशन दिया तो ही वाज सो एक्साइटेड, बोला ये बॉस आपकी पहले, मेरे को और भी काफ़ी ऑफर्स हैं पर ये पहली फिल्म मैं आपके साथ करूँगा बिकॉज इसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है और बड़ी रोमांटिक कॉमेडी है ये, और अच्छी फिल्म। थैंक यू। विपिन सर, ये पूछना चाहूँगा, उड़न जो आपने कास्टिंग किया गौतम गुलाटी को लेकर, क्या स्पेसिफिक रीज़न था कि गौतम को अपने फिल्म में कास्ट किया? एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न तो ये था कि जिस तरीके से उसने दिलों को उड़ाया है बिग बॉस में, आई थिंक हमारा फिल्म के अंदर में उड़ाने वाले, एकदम फैमिली फिल्म है और मज़ा आएगा। उसने फैमिली शो तो ऑलरेडी आई थिंक ही इज़ देयर इन एवरीबॉडीज हार्ट। सो गौतम के अलावा जो स्टार कास्ट हैं, सायशा सहगल है, ब्रूना भूला है, प्रेम चोपड़ा जी, सायशा के साथ मैंने काम किया है पहली फिल्म में अपनी नो एग्जिट में, और ये फिल्म में शी इज़ प्लेइंग लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड एज एन she worked very hard. She's been working on her looks almost 6 months. Now we have achieved something. Now still she's working. Then there is Premji, who is playing a really kind of role where he haven't done anything. He's got a long lasting career, like almost 60 years or 50 years of career, but this is the kind of role which he's playing he's never played, so that's what is exciting for him also. एज अ डायरेक्टर आप क्या फील करते हैं, ये पिक्चर दर्शक क्यों देखने आएंगे, ये स्पेसिफिक रीज़न क्या होगा? सी, पहली चीज़ तो जो हमारा फिल्म, अभी तो फिल्म के बारे में बताना थोड़ा सा टू अर्ली हो जाएगा, बट फिल्म का जो टाइटल है उड़नचू, जैसे आप देख रहे हैं, टाइटल इटसेल्फ इज़ अ वेरी कैची। और जैसे मैंने बताया अभी कि हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी छोटे छोटे कौन करते रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन कहीं ना कहीं हमें इस फिल्म में अपना ऑडियंस के साथ में कनेक्शन मिलेगा, वो कनेक्ट होंगे। आई थिंक दैट इज़ द मेजर कैच वेयर आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पीपल विल लव इट। और ये भी बता दीजिए, आर विजन के जो ऑनर है रविंद्र सिंह जी, उनका कितना सपोर्ट है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में? आई थिंक उनकी वजह से आज ये फिल्म बन रहा है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एज आई एम सेइंग, वी आर सेइंग दैट शी इज़ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, सो ही इज़ देयर because he's emotionally there, financially he's there, he's using all his expertise over 15 years or 20 years he's been in the industry, so he's supporting us from I think from creatively, financially, everything. Asking about what is the subject of the film and what kind of role you are playing in the film? So these guys are all con people. My character has a little twist, which I'm not allowed to say now, but I'm playing a girl called Julia, and I'm going to be paired with Prem Chopra ji. Can you imagine? What an odd couple. But I'm excited. I'm really happy to be. It's going to be a learning experience for me to act with Prem Chopra and Ashutosh Rana. I'm really looking forward to working with senior actors, and I think it's just going to add it's just going to add so many things to my life and as an actress. The role is I'm mostly playing Prem Chopra's right hand in the film. So yeah, that's all I can say. Talking about Gautam Gulati, how do you find him as an actor, as an individual, as such? See, actually, I'm going to get to know him now during the film. All I know about him is Big Boss, but I don't know if you can really know the true person just, on television. So I'm looking forward to get to know him and everyone else from the cast. Does the production house matters to you? People aspire for making a mark in a big production house, big brand. Does it matter to you as an individual? That's a very interesting question. Thank you. Like Prem Chopra ji said, it doesn't really matter. I guess when people are excited and when they're all want to work hard, I think this is what matters. And once I heard the script, once I heard everyone on board, everyone looks so
everyone is so excited and enthusiastic about the film, and I think hard work makes it happen. So, last question: how supportive have been with the Bollywood industry to you as of now? You know, I have been doing a little bit of everything, and this is what I enjoy. I think work is pretty much my religion. I respect everything I do when it comes to modeling, when it comes to shoots, and maybe roles in films. It just makes me happy. I'm really kind to the country. I'm really kind to India because whatever I have achieved because of you guys who support me. So I'm really grateful. Thank you so much. Of course. Channel Punjab. नहीं कोई नहीं जैसे चाहे आप. Why you want me to sit there? Sir, rolling. Sir, you want me to sit there? Channels हैं ये. सर काफी चैनल्स और वेबसाइट हो जाते हैं, कंटेंट जाते हैं. चैनल्स और वेबसाइट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिर ये पूछना चाहूँगा इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है और क्या किरदार निभा रहे हैं? देखिए ये जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है ये तो सिर्फ डायरेक्टर का ही एक प्रोरोगेटिव है, वो बताएगा. कई चीज़ें बताना चाहेगा, कई चीज़ें नहीं बताना चाहेगा. ये सस्पेंस थ्रिलर भी है, ये एक फैमिली ड्रामा भी है. बड़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है एक. अब डायरेक्टर साहब के लिए जो सवाल ठीक रहेगा, जवाब वही देंगे. लेकिन सर उम्र के इस दौर में आप जो चुनाव करते हैं अपने किरदार का, वो कौन सी बेसिस पे करते हैं? प्रोडक्शन हाउस को देख के करते हैं? हाँ, प्रोडक्शन हाउस को देख के करते हैं, रोल को देख के करते हैं, स्क्रिप्ट को देख के करते हैं. और आजकल जितना पहले काम करते थे उतना नहीं करते, लेकिन जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, ताकि अभी जो वक्त आया करें तो जब वक्त उसमें लगाएं तो एक काम की चीज़ होनी चाहिए. वरना ऐसा लगे कि पुराने ज़माने की तरह ही काम करते जा रहे हैं, काम करते, पिक्चरें लगते जा रही हैं, उतरती जा रही हैं. कुछ एक फिल्में ऐसी होती हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ योर रोल, बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल. तो ये आजकल मैं तरजीह देता हूँ. सर आपने जब कैरियर की शुरुआत की थी उस समय फिल्में तो बनती थी, आज भी बनती हैं, लेकिन आज के दौर की जो फिल्में होती हैं उनका कंटेंट अगर देखा जाए तो उस हिसाब से इसीलिए ही वो फ़र्क तो ज़रूर है. लेकिन जिसमें कंटेंट नहीं होता उस वक्त भी यही हाल था, आज भी वही है. जिसमें कंटेंट नहीं होता वो पिक्चर नहीं चलती. आप इधर से चोरी किया, वीडियो का एक सीन वहाँ से ले लिया, सीन वहाँ से ले लिया. लेकिन कई एक पिक्चरें जो बहुत कामयाब होती हैं उनमें कंटेंट होते हैं और लोगों के साथ वो बिगर देन लाइफ नहीं होती हैं पिक्चरें, वो आइडेंटिफाई करती हैं पब्लिक के साथ. ये फिल्म के बारे में इतना कह सकता हूँ कि ये जो है इट विल आइडेंटिफाई विद पीपल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है. सर जिस तरह आपने बताया कि शशि कपूर जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, आपको खुशी हुई. आपने भी कम योगदान नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री को, काफ़ी फिल्में की हैं, काफ़ी अभिनय किया और क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान दिया, तो आप डिजर्व नहीं करते ये दादा साहब फाल्के अवार्ड? अब देखिए ये तो डिसीजन एक नेशनल जूरी अवार्ड ही करती है. जब अगर उनकी नज़र में हम आएंगे तो शायद हमें भी मिल जाएगा. इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या और कौन सा किरदार निभा रही है इस फिल्म में? इस फिल्म का सब्जेक्ट अगर मैं आपको साफ शब्द में बोलूँ तो कॉन फिल्म है. आउट एंड आउट अ कॉन फिल्म. इस फिल्म में जितने भी किरदार हैं वो एक दूसरे को कॉन करे जा रहे हैं. एंड अगेन आई एम प्लेइंग अ लीड कैरेक्टर एंड आई एम बीइंग लॉन्च्ड इन द फिल्म. तो मैं भी कॉन गर्ल का ही कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. स्टेज पर आपने से बताया आर विजन और रविंद्र सिंह जी आपके कैरियर में कितना योगदान करते हैं अभी जिस मुकाम पे आप हैं? बहुत योगदान करते हैं. आई मीन उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, आज मुझे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वो मेरे करियर में. और ये इसलिए भी कि मैं उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, मेरे डायरेक्टर के साथ काम कर चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मेरे कैलिबर को समझा और मुझे प्लेटफॉर्म ऑफर किया. तो आई एम थैंकफुल टू दैम. और गौतम गुलाटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बिग बॉस के थ्रू हाउसमेट नेम बन गए हैं, अभी बड़े पर्दे पर पदार्पण उनका, तो वैसे एक्टर कैसे इंडिविजुअल हैं वो? मोर देन एन एक्टर, मतलब अभी तक हमारी इतनी सिटिंग्स हो नहीं पाई है. 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे नाउ, जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी एंड यू नो आई विल बी मीटिंग हिम अलोंग द वे. बट जितना मैंने समझा है ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड यू ऑलरेडी नो दैट ही इज़ सो फेमस. ही इज़ ऑलरेडी अ स्टार एंड अ गुड परफॉर्मर ऑल्सो, क्योंकि मैंने कुछ एपिसोड्स बिग बॉस में देखे थे, तो यूज्ड टू परफॉर्म वेल. So more than a star and as an actor, I like them as a person and very comfortable to work with. और इस प्रोजेक्ट के अलावा और कुछ कर रही हैं आप? चीज़ें पाइपलाइन में हैं, but it's too early to reveal. तो अब मेरा जो पूरा फोकस है वो अंशु की तरफ है. I want to give my 100% to this project and do my job with 100% honesty.